Praise the Lord, my dear brothers and sisters, and I welcome you for this prayer meeting in Jesus' name. Let us sign ourselves in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. My dear brothers and sisters, as we begin our praise and worship, let us invoke a Heavenly Mother who will be journeying with us throughout this session. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of death. Amen. प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमेन। नमो कृपा पूर्ण मरिये, प्रभू तुझ्या ठाई आहे, धन्य तू स्त्रियांमध्ये आणि धन्य तुझे उदराचे फळ येशू। हे पवित्र मरिया, देवाची माते, आम्हा पाप्यांसाठी आता आणि आमच्या मरण्याच्या वेळी विनंती कर। आमेन. Praise the Lord, my dear people of God. As Psalmist says, take delight in the Lord and he will give you desires of your heart. भजनकार कहते कि प्रभु में आनंदित रहो तो वह तुम्हारी मनोरथों को पूरी करेगा. This is love of living God. He loves us so much that he doesn't want us to be unhappy. He doesn't want us to be sad or to weep. Neither he wants us to crave for anything. Rather, he wants to take delight in him, not in worldly pleasures. And he wants to give desires of our heart. He wants to fulfill all our dreams. देखो, ये हमारे परमेश्वर का प्रेम जो हमसे इतना प्रेम करते हैं कि वो नहीं चाहते कि हम उदास रहे या फिर गिड़गिड़ाए. वो चाहते कि हम उनमें आनंदित रहे, उनमें बढ़ते चले जाएं, और वो हमारे सारे मनोरथों को, हमारे सपनों को पूरी करना चाहते हैं. तो क्यों ना हम ऐसे परमेश्वर की स्तुति करें, उन्हें ऊंचा उठाएं, सारी महिमा दे जिसके वे योग्य है. So let's give all praises and glory and honor to our living God, who is worthy of our praises, by singing this song. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In the difficult hour, He will crush and devour, and bring the bars of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In the difficult hour, He will crush and devour, and break the bars of darkness underneath my feet. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are safe, and they are safe. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are safe. Blessed be His name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord.
name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works for the enemy. In a difficult hour, He will crush and devour, and bring the parts of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush and devour, and bring the powers of darkness underneath my feet. And bring the powers of darkness underneath my feet. Hallelujah, praise you, Lord, thank you, Lord, glory and hallelujah. Mighty is your name, wonderful is your name. Oh, we lift your name on high, there is none like you. Your name is Jesus, you are a mighty God. Oh, we bless your name, you are my Lord, my King and Master. You alone are the Alpha and Omega. You are my salvation, you are the King of Kings. You are the Lord of Lords, oh, we bless your name. There is none like you, Lord God. Oh, we lift your name on high, because you're the lover of my soul. Oh, we love you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 Psalm 118:1 says, "O give thanks to the Lord, for He is good. His steadfast love endures forever." So let's spend some time in prayer and invite Holy Spirit in our midst. धन्यवाद धन्यवाद करते हैं मेरे सेनाओं के परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी भलाई के लिए, आपके बेशर्त प्रेम के लिए। धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु राजा, आपने इस जीवित धरती पर हमें जीवित रखा। इस जीवन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं, मैं उनके मध्य में रहता हूँ। धन्यवाद करते हैं यीशु राजा कि आप हमारे मध्य में हो, आप सदा हमारे साथ रहते हो। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर शाम के लिए जो आपने हमें दिया है, तहे दिल से हम आपका शुक्रिया करते हैं मेरे प्यारे खुदावंत, कि आपने हमें हर बीमारी से, हर विपत्ति से, हर मुसीबत, हर खतरे से बचाए रखा। प्रभु इस समय जो भी भाई बहन मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल है, हम उनको आपके पवित्र लहू से भर देते हैं। इस समय आने वाले सारे बाधाओं को हम यीशु नासरी के नाम से धिक्कारते हैं। जाने अनजाने में जो भी कोई गुनाह गलती हुई हो प्रभु, तो आप हमें माफ़ कर दे, हमारे गुनाहों को काली घटाओं के समान मिटा दे। प्रभु इस समय हम आपके पवित्र आत्मा को मांगते हैं। आपका वचन कहता है कि मैं अपनी आत्मा सारे मानव जाति पर उंडेल दूंगा। आइए प्रभु पवित्र आत्मा, हम आपको हमारे बीच बुलाते हैं। आइए और हमें अपने सामर्थ्य और शांति से भर दे, ताकि हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना सच्चे मन और आदर से कर सके, जिसके वे योग्य है। Let's sing this beautiful song and welcome Holy Spirit in our midst. Oh
your church and over our lives. Holy Spirit, rain down, rain down. Holy Spirit, rain down, rain down. Oh, comforter and friend, how we need your touch again. Holy Spirit, rain down, rain down, rain down, rain down. Psalm 95:6 says, "Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker." आओ हम झुककर दंडवत करते हैं और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके. My dear brothers and sisters, as we enter into this time of deeper worship, if you can, go down on your knees or take any honorable posture as we are in presence of a sovereign Lord. Close your eyes. अपनी आंखों को बंद करें. Believe in faith. Jesus is present with us. Experience His tender touch. He is holding our hands. He is embracing each one of us. He is consoling us. Yes, Lord Jesus, we come before you with humble and grateful heart. Once again, Lord, we want to thank you for your presence in our midst. We want to thank you for assurance of your protection, healings and deliverance. Lord, it is our desire to worship you. At this very moment, Lord, we worship you. You alone are worthy of all praises and worship. सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो. करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरी गुणगान. सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो. करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरी गुणगान. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
Let us give glory and honor to our Lord for blessing us with Sister Lena, for leading us into this wonderful time of praise and worship, which has helped us experience God's presence. Thank you, Sister Lena, for leading this praise and worship for the very first time. May God bless you and your family. Today we have in our midst Brother Augustine Mendes, who is a prayer group leader of Our Lady of Fatima Church, Majivada. He has also been an ex-zonal coordinator of Thane Ambernath Zone. Today, he will be sharing with us the word of God on the topic, Eternal Life Salvation. So, brother, a warm welcome to you in our midst in the name of Jesus. Thank you, Smita. Thank you. Welcome. I'll just take a moment to share screen. Okay, are you able to see the PPT here? Yes, brother. Brother, you can make it on the full mode. I'm just trying Slideshow. that. Slideshow, it's, okay. Now it's on the full mode, no? Is it on the full mode now on the screen? Yes, brother. Yes, brother. Yeah. Thank you and God bless you all. I think we have a very important topic today, especially keeping in mind the situation that we are in and what is going around us. So here, these are the images that we are getting bombarded almost daily. I just want a few reactions. When you see this image, what do you feel? What are your feelings when you see this image? Yeah, anyone, one or two people at least. Or maybe Smita, you can call out names and get the reactions. Yeah, sure. Yeah, Sister Lian. Yes, sister. So what is your reaction after you Okay, I can see as if many bodies being burned together. Yeah, but what do you feel when you see this image? It's very sad. Very sad. Yeah, one more. One or two more reactions fast. Very scary. Scary. One more reaction. One more person. क्या ये आत्माएं बचाई गई है? हाँ, ये आत्माएं क्या कहा आपने? बचा गई है अनंत जीवन के लिए. थॉट के माय माइंड. अच्छा, ओके. तो ये चित्र देख के ज्यादातर लोगों को दुख महसूस होगा, सही है, राइट? यस. और बहुत सारे लोगों को लगेंगे क्यों मर रहे हैं. और जब कोई भी हमारे आसपास या हमारे फैमिली में भी अगर कोई मरण होता है तो हमें उसका बहुत दुख लगता है. मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ. मेरे बचपन में मैं बहुत छोटा था मैं, और मुझे मृत्यु के बारे में बिल्कुल पता नहीं था. मैं जानता नहीं था कि मृत्यु भी होती है. तो ये जो मेमोरी है, ये जो इंसिडेंट है, मेरे एकदम मेमोरी में बैठ गया है, क्योंकि उस दिन पहली बार मुझे पता चला कि हमें एक दिन मरना है. तो हमारे नेबर और मेरे आंटी भी थे जो हमारे साथ रहते थे. तो उन्होंने ऐसे बातचीत करते करते उन्होंने कह दिया, हाँ एक दिन तो हम सबको मरना है. तो मुझे वो सुन के एकदम शॉक लगा. मतलब मरना है? मुझे एकदम ये लगा कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, कि ऐसे कैसे कोई व्यक्ति मर सकता है. तो मुझे उस दिन बहुत शौक लगा. और मैं वहाँ पे, हमारे नेबर्स कुछ थे, 4-5 लोग थे वहाँ पे. जब ये लोग ये बातें कर रहे थे आपस में, मैंने सबको पूछा क्या ये सही है, क्या ये सही है, और सब लोग ने कहा हाँ एक दिन तो हम सबको मरना है. और मैं छोटा था बच्चा, मुझे एकदम शौक लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है. तो मृत्यु एक ऐसी चीज है जो हमें दुख देता है, और हमें ऐसा लगता है कि हमेशा ऐसा लगता है कि ये होना नहीं चाहिए था.
मृत्यु होना नहीं चाहिए था। ऐसे हमें क्यों लगता है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें मृत्यु के लिए बनाया ही नहीं, परमेश्वर ने हमें बनाया अनंत जीवन के लिए। ये हमें बाइबल भी बताता है और ये हमें हमारे जो कलीसिया का जो टीचिंग है, हमारा चर्च जो है कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च के, तो ये भी हमें बताता है इन पैराग्राफ 413 ऐसा लिखा गया है कि परमेश्वर ने मृत्यु नहीं बनाया और वो किसी भी मृत्यु में उन्हें आनंद नहीं होता है। जब कोई भी जीवित व्यक्ति का मृत्यु होता है तो परमेश्वर को आनंद बिल्कुल नहीं होता है। तो परमेश्वर ने हमें मृत्यु के लिए नहीं बनाया, परमेश्वर ने हमें बनाया है अनंत जीवन के लिए, अनंत काल, इटर्नल लाइफ। गॉड हैज मेड अस फॉर इटर्नल लाइफ। पर जब हम अनंत जीवन और इटर्नल लाइफ के बारे में सुनते हैं तो हम सबको एक ही ऐसा लगता है कि ओके, अनंत जीवन मतलब क्या है कि एक ऐसा जीवन जो कभी खत्म नहीं होगा। पर अनंत जीवन सिर्फ क्या वही है कि अनंत जीवन सिर्फ वही है कि जीवन जो कभी खत्म नहीं होगा? क्या अनंत जीवन में और भी ऐसे कुछ बातें हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं है? तो हम आज देखेंगे कि पहली बार हम देखेंगे कि अनंत जीवन है क्या। अगर यीशु हमें कहता है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन देने के लिए आया हूं, तो ये अनंत जीवन है क्या, इसमें क्या होता है, इस एक किस तरीके का जीवन है? तो पहला पॉइंट अनंत जीवन के बारे में मैं ये कहूंगा कि अनंत जीवन में इंग्लिश में ऐसे कहते हैं कि इट इज परफेक्ट यूनिटी। तो यूनिटी का मुझे पता नहीं हिंदी में क्या होगा अनुवाद। एकता। ओके, हाँ, मेरे पास यहाँ पे एक टेलीप्रॉम्प्टर है, अगर मैं अटक जाता हूँ हिंदी में तो मेरी मिसेस यहाँ पे बैठी है जो मुझे बताएगी कि कहाँ पे क्या शब्द मुझे यूज करना चाहिए। तो परफेक्ट यूनिटी। तो अनंत जीवन में क्या होता है कि परफेक्ट यूनियन या परफेक्ट यूनिटी होता है, या पूरी तरीके से एक हमारा एकजुट हो जाता है। पर एकजुट किसके साथ हो जाता है? तो पहली बात एकजुट हम हो जाते हैं हमारे हेवनली फैमिली से। स्वर्ग हमारे स्वर्ग में भी एक परिवार है और उस परिवार के साथ हम पूरी तरीके से जुड़ जाते हैं। अभी ये परिवार में कौन, हम हमारे स्वर्ग परिवार में कौन हमें मिलेगा? जो भी हमारे फैमिली मेंबर्स है जो मरे हैं, पर वी कैन से दैट दे डाइड इन ग्रेस। जब उनका मृत्यु हुआ तो परमेश्वर के ग्रेस या अनुग्रह में वो थे, तो और उनका जो आत्मा है वहां पे अनंत जीवन में है। तो हमारा उनके साथ एकजुट हो जाएंगे, हम उन्हें देखेंगे, हम उनके साथ फिर से जुड़ जाएंगे। तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ मैं जब सोचता हूँ कि जब मैं इटर्नल लाइफ में जब हेवन में जाऊंगा, इटर्नल लाइफ मुझे जब मिलेगा, तो मेरे पिताजी जो नहीं है अब मेरे साथ, मैं मेरे पिताजी को देखूंगा, मुझे तो मैं सोचता हूँ तो मुझे बहुत खुश होता है, मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। फिर मेरा एक कजिन ब्रदर था जो यंग एज में कैंसर से मृत्यु हुआ, तो मैं उसके साथ में उसे मिलूंगा। मेरे ग्रैंडफादर्स, जो मेरे अंकल्स है, बहुत रिलेटिव्स है जो यीशु के अनुग्रह में रहते थे और उनका मृत्यु हुआ, मैं उन सब से मिलूंगा। फिर ये जो परिवार है, हमारा परिवार है, आप जब हमें जब सोचना है कि हम रोज रोजरी करते हैं, कितना खुश होंगे हम जब हम मदर मेरी को आमने सामने देखेंगे, जब हमें उनसे गले मिलने का मौका मिलेगा, जब हम उन्हें छू सकेंगे, कितना खुशी होगा। और हमारे हेवनली फैमिली में वो सब संत, सेंट पीटर, सेंट पॉल, जिनके बारे में हमने सुना है, जिनके बारे में हमने बाइबल में पढ़ा है, इब्राहिम, मोसेस, जस्ट सोचिए कि वो कैसा एक्सपीरियंस होगा जब हम इन सब लोगों से मिलेंगे। और ये हमारे फैमिली मेंबर्स है, दे आर आवर ब्रदर्स, दे हैव गॉन अहेड ऑफ अस। बहुत सारे स्वर्गदूत ये भी हमारे फैमिली में रहेंगे। तो इट विल नॉट बी कि ऐसा तो इसमें दो तरीके का परफेक्ट यूनिटी होता है। तो फर्स्ट है कि हम हमारे
फैमिली, हेवनली फैमिली है, उनसे मिलेंगे। और ऑफ कोर्स दूसरा बात ये है कि हम पिता परमेश्वर, हम यीशु से मिलेंगे। जस्ट सोचिए कि हम यीशु के सामने होंगे, फेस टू फेस, जैसे 1 कोरिंथियंस 13:12 में लिखा गया है कि वी विल बी फेस टू फेस विद द लॉर्ड। अब हम परमेश्वर को पूरी तरीके से हम देख नहीं सकते हैं, फेथ से भी हम उसे धुंधला सा हम इमेज में हम देखते हैं, पर जब हम अनंत काल में जाएंगे, उस लाइफ में जाएंगे, इटर्नल लाइफ में, तब हम यीशु को आमने सामने देखेंगे, तब हम परमेश्वर को आमने सामने देखेंगे। कितना खुशी का एक मौका होगा उस वक्त। और इट्स सो दिस इज, तो इटर्नल लाइफ में ये सबसे पहला चीज है। जो बहुत कुछ है इटर्नल लाइफ में जो हम कह सकते हैं, बट मैंने सिर्फ 3 पॉइंट्स को चुना है। तो पहला पॉइंट है कि हम परफेक्ट यूनिटी में जाएंगे, हम हमारे हेवनली फैमिली से मिलेंगे, जुड़ जाएंगे, यूनियन उनके साथ होगा, और हम हमारे परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते थे, जिससे हम प्रार्थना करते थे, हम परमेश्वर, हम यीशु से जुड़ जाएंगे। दूसरा जो चीज है, दूसरा जो पॉइंट है जो इटर्नल लाइफ में होगा, वो होगा परफेक्ट हैप्पीनेस। जो खुशी हमें चाहिए, जो खुशी का हम एक आग्रह रखते हैं हमारे मन में कि हमें खुशी चाहिए, वो जो परफेक्ट खुशी है वो हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा, वो हमें हेवन में ही मिलेगा। ओके, तो जैसा हम कहते हैं ना, शायद बहुत लोगों को लगता होगा कि हेवन में सिर्फ प्रेज एंड वर्शिप होगा, सिर्फ प्रार्थना होगा, 24 घंटा सिर्फ प्रार्थना होगा। तो अगर हम ये सोच रहे हैं तो हम गलत सोच रहे हैं, क्योंकि हेवन में और इटर्नल लाइफ में बहुत खुशी होगा। तो उस वक्त ऑफ कोर्स प्रेज एंड वर्शिप भी होगा, पर उसमें भी एक अलग तरीके का आनंद होगा। पर जब हम बाइबल पढ़ते हैं, इटर्नल लाइफ के बारे में हम पढ़ते हैं, तो अलग अलग तरीके का वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है इटर्नल लाइफ के बारे में वर्णन करने के लिए। तो और ये जो भी पॉइंट्स मैं कह रहा हूँ, ये मेरे खुद के पॉइंट्स नहीं है, मैंने ये सब कैटेकिज्म ऑफ द कैथलिक चर्च से लिया है। तो पैराग्राफ 1024 अगर आप पढ़ेंगे और उसके आगे के जो पैराग्राफ है वो पढ़ेंगे, तो ये सब पॉइंट आपको उस कैटेकिज्म में मिलेगा। तो दूसरा जो पॉइंट है, इटर्नल लाइफ कैसे होगा, इटर्नल लाइफ में परफेक्ट हैप्पीनेस, जो परफेक्ट खुशी है, जो खुशी का हमें दिल से आग्रह हम करते हैं कि मैं खुश होना चाहता हूँ, वो खुशी, वो जो आनंद है वो हमें वहां पे ही मिलेगा। तो बाइबल जो अलग अलग तरीके का शब्दों का इस्तेमाल करता है, वर्णन करता है इटर्नल लाइफ को, इटर्नल लाइफ के बारे में बताने के लिए, वो ये है लाइफ मतलब जीवन, संपूर्ण जीवन। लाइट मतलब परफेक्ट लाइट, मतलब वहां पे कोई अंधकार नहीं होगा। पीस, शांति, वो एक इटर्नल लाइफ, एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमें फुल शांति मिलेगी। वेडिंग फीस्ट, अब वेडिंग फीस्ट में क्या होता है, वेडिंग फीस्ट मतलब पार्टी है, तो वहां पे भी हेवन में भी एक पार्टी ही होगा, वेडिंग फीस्ट। वाइन ऑफ द किंगडम, वाइन भी एक सिंबल है खुशी का। तो जब वाइन पीते हैं, तो जब बाइबल में कहा गया वाइन के बारे में, तो जॉय या खुशी का सिंबल है। तो हेवन इज अनदर वर्ड फॉर हेवन, इटर्नल लाइफ इज द फादर्स हाउस, हमारे पिता परमेश्वर का घर। हमें कैसे लगता है घर एक जगह है जहाँ पे सिक्योरिटी मिलता है, घर एक जगह है हमें जहाँ प्रोटेक्शन मिलता है, और हमें एक अपनापन का महसूस होता है। तो घर वो है। तो इटर्नल लाइफ भी वैसे ही है, हेवनली जेरूसलम, पैराडाइज। इटर्नल लाइफ एक ऐसी जगह है जहाँ पे देयर विल बी नो टीयर्स, किसी के भी आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे। आंसू निकलेंगे तो खुशी के आंसू निकलेंगे, दुख के आंसू नहीं निकलेंगे। तो देयर विल बी नो डेथ, इसके बाद इटर्नल लाइफ में किसी का भी मरण नहीं होगा। देयर विल बी नो सिकनेस, कोई तरीके का बीमारी नहीं, कैंसर नहीं, हार्ट अटैक नहीं, कोरोना नहीं, और कोई तरीके का पेन नहीं होगा, हमें कोई भी तरीके का दर्द नहीं होगा। यही 1 कोरिंथियंस 2:9 में लिखा है, what no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived, the things God has prepared for those who love him.
इटर्नल लाइफ में हमें क्या क्या मिलेगा इसका हम अंदाज भी नहीं कर सकते। यही 1 कोरिन्थियंस 2:9 में लिखा है। तो दूसरा पॉइंट ये था इटर्नल लाइफ के बारे में कि इटर्नल लाइफ में हमें हर तरीके का खुशी जो हमें चाहिए वो हमें मिलेगा। तो एक एक है ना, मेरे भी मन में ऐसा विचार आता है हमेशा कि ये सिटी लाइफ छोड़ के गांव में रहना चाहिए, जहाँ पे बहुत सारे झाड़ है, ग्रीनरी है, पीस है। पता नहीं इस लाइफ में गॉड ने हमारे जिंदगी में क्या क्या लिखा है, पर मुझे यकीन है कि इटर्नल लाइफ में ये जरूर पूरा होगा। क्योंकि इटर्नल लाइफ अगर हम बाइबल पढ़ेंगे तो इसमें ऐसा लिखा है कि एक नया स्वर्ग और एक नया पृथ्वी का निर्माण होगा। तो ये जो हम पृथ्वी में रह रहे हैं, ये तो दिन भर दिन हम कह सकते हैं कि इट इज डिकेइंग, ये सड़ते जा रहा है। यहाँ पे हर चीज खराब होते जा रहा है, वातावरण खराब हो रहा है, दुनिया में बीमारियां बढ़ रही है। तो एक नया पृथ्वी का भी वर्णन, नया पृथ्वी का भी निर्माण परमेश्वर करेंगे इटर्नल लाइफ में। नया पृथ्वी का भी वर्णन इटर्नल लाइफ में परमेश्वर करेंगे। और हमारे बहुत सारे जो इच्छाएं हैं और इच्छाएं वो वहां पे पूरा होगा। और तीसरा जो पॉइंट है इटर्नल लाइफ के बारे में, इटर्नल लाइफ कैसे होता है, अनंत जीवन कैसे होता है, कि एक ऐसा जगह है जहाँ पे परमेश्वर की इच्छा परफेक्शन या पूर्ण तरीके से परमेश्वर का इच्छा वहां पे होगा। यहाँ पे तो बहुत कुछ गलत हो रहा है। इवन हमारे बीच में भी हम प्रार्थना सभा में होकर भी हम कितने गलत चीज करते हैं। वी गॉसिप, हम एक दूसरे के बारे में उनके पीठ पीछे बुराई करते हैं। हमें पता है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, फिर भी हम परमेश्वर का इच्छा यहाँ पे पूरी तरीके से नहीं करते। पर वहां पे इस तरीके का जीवन नहीं होगा। वहां पे परफेक्शन होगा। वहां पे हर कोई व्यक्ति और इवन द नेचर, इवन द क्रिएशन, जो परमेश्वर जो निर्माण फिर से करेंगे, हर चीज, इवन द क्रिएशन, पेड़ पौधे, इवन द बर्ड्स, द एनिमल्स, एवरीवन विल ओबे द विल ऑफ गॉड परफेक्टली। हम सब हम एक दूसरे के साथ और परमेश्वर के साथ, हमारे बीच में उनका जो गॉड्स विल या उनका जो इच्छा है वो पूरी तरीके से परफेक्टली इट विल बी डन इन इटर्नल लाइफ। तो इटर्नल लाइफ ये है, ये 3 पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है इटर्नल लाइफ के लिए। तो पहला पॉइंट था कि इटर्नल लाइफ में हम परमेश्वर के साथ और हमारे फैमिली के साथ हम जुड़ जाएंगे, हेवनली फैमिली के साथ। दूसरा पॉइंट ये था कि वहां पे हमें परफेक्ट हैप्पीनेस मिलेगा। और तीसरा पॉइंट ये था कि वहां पे परमेश्वर का इच्छा पूरी तरीके से होगा। पर यहाँ पे हमें अब ध्यान देना है बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पे। ओके, just because we are Christians, it does not mean that all of us will enter eternal life। क्योंकि हम क्रिस्ती हैं और क्योंकि हम कैरिज्मेटिक प्रेयर मीटिंग में आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सभी को इटर्नल लाइफ ऑटोमेटिकली या मिल जाएगा। तो इटर्नल लाइफ के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, कुछ डिसीजंस लेना होगा। और इसी का चेतावनी हमें प्रभु यीशु देता है। लूक चैप्टर 9 वर्स 25 में ऐसा लिखा गया है, व्हाट गुड इज इट फॉर समवन टू गेन द होल वर्ल्ड एंड येट लूज और फॉरफीट देयर वेरी सेल्फ। तो प्रभु यीशु कहता है कि यहाँ पे हमें शायद बहुत सारी खुशियां मिल सकता है, बट ऐसा भी हो सकता है कि ये सब मिलने के बाद हमें इटर्नल लाइफ ना मिले, तो क्या फायदा। तो ये एक चेतावनी है कि इटर्नल लाइफ हर किसी को नहीं मिलेगा। और यही इस बात का एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल है लूक चैप्टर 23 में, जब परमेश्वर का क्रूज पे मरण हुआ। उनके बाजू में 2 व्यक्ति थे, दोनों भी रॉबर्स या क्रिमिनल्स थे और उन्हें भी पनिशमेंट दिया गया। अब देखिए कि दो व्यक्ति है जो यीशु के बाजू में हैं और दोनों भी व्यक्ति का मरण होने वाला है, पर एक व्यक्ति ने कुछ किया उस वक्त
जिसकी वजह से उन्हें इटर्नल लाइफ मिला। मैं चाहता हूं कि आप इस टॉक के बाद आप घर जाए लूक 23 को पढ़िए, तो उसमें लूक 23 में एक व्यक्ति को इटर्नल लाइफ मिला और दूसरे व्यक्ति को इटर्नल लाइफ नहीं मिला। तो ये जो इटर्नल लाइफ है, ये हम क्या चूज करते हैं, हम किस तरीके का निर्णय इस जीवन में लेते हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो इस गलतफहमी में हमें किसी को भी नहीं रहना चाहिए कि क्योंकि मैं एक चर्च में मेरा बैप्टिज्म हुआ है, क्योंकि मैं प्रेयर ग्रुप में जाता हूँ, इसलिए मेरा इटर्नल लाइफ निश्चित है। नहीं, कुछ इम्पोर्टेंट चीज है होना चाहिए और जिसके बारे में मैं अब आपको बताऊंगा। तो इटर्नल लाइफ उन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। सो व्हाट आर द चॉइसेस दैट वी नीड टू मेक in order to have eternal life? So basically तीन तरीके का निर्णय हमें लेना है इस जीवन में। There are three choices that we need to make. The first choice is we need to return to the Father. तो जो पहला निर्णय हमें लेना है, हमें हमारे पिता की ओर मुड़कर हमारे जो जीवन का जो डायरेक्शन है, दिशा, जीवन का जो दिशा है, हमें उस दिशा से मुड़कर हमें पिता परमेश्वर की ओर बढ़ना है। ये हमारा फर्स्ट चॉइस होना चाहिए। जरा हम इस पॉइंट को समझते हैं। तो इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है इन लूक चैप्टर 15। जब हम प्रोडिगल सन के बारे में, जो पैरेबल है प्रोडिगल सन के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें ये बहुत अच्छी तरीके से प्रभु यीशु ने हमें बताया गया है। तो एक व्यक्ति था जिनके 2 बेटे थे। तो उस एक बेटे को लगा कि नहीं, मैं पिता के साथ नहीं रहना चाहता हूँ, उनके घर में नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे अपना जीवन जीना है, मुझे उस जीवन के साथ मैं जो करना चाहता हूँ मुझे वो सब करना है। तो मुझे पिता के साथ रहकर वो जो तरीके का जीवन जीने के लिए मुझे कह रहे हैं, मुझे उस तरीके का जीवन नहीं जीना है, मुझे जीवन जीना है अपने तरीके से। और ये जो बेटा है वो पिता को कहता है कि मेरा जो हिस्सा है, जायदाद का जो हिस्सा है मुझे दे दो, मैं जीवन अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। और पिता उसे दे देता है, उसके जायदाद का जो हिस्सा है दे देता है। तो और ये जो व्यक्ति क्या करता है, वो जायदाद लेकर, वो धन लेकर वो पूरा पैसा वेस्ट कर देता है दारू में और सब गलत चीजों में, और वो उस तरीके का जीवन जीता है जो उसको उस तरीके का जीवन जीता है जो वह जीना चाहता है। ओके, he leads the kind of life that he wants to live. He doesn't lead the kind of life that his father wanted to live. And this is the question that we need to ask ourselves. What kind of a life am I living? Am I living the life that I want to live, or am I seeking what is the will of God for me? हम सबको ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हमसे पूछना है। मैं किस तरीके का जीवन जी रहा हूँ? क्या मैं एक ऐसा जीवन जी रहा हूँ जिसमें मैं जो करना चाहता हूँ वो सब कुछ मैं कर रहा हूँ? क्या मैं उस तरीके का जीवन जी रहा हूँ जहाँ पे मैं हर समय पिता परमेश्वर से कहता हूँ कि पिता परमेश्वर आपकी इच्छा क्या है? क्या मेरा दिल पिता परमेश्वर की इच्छा करना चाहता है, या मेरा जो दिल है वो मेरी इच्छा करना चाहता है हर वक्त? मैं किस तरीके का जीवन जी रहा हूँ? और इस व्यक्ति के साथ क्या होता है कि लूक 15 में जो पैराबल में जो लड़का है जो अपने तरीके से जीता है जीवन, वो उसका जो जीवन है बहुत बुरा हालत होता है। उन्हें पूरा पैसा खत्म हो जाता है और उनके पास खाने के लिए भी पैसा नहीं है। उस वक्त वो जो सुअर को जो खाना दिया जाता है उस खाने को खाकर वो दिन गुजारता है। तब उसे लगता है कि मैं जो पहला जीवन जी रहा था मेरे पिता के घर में, वो जीवन इस जीवन से 1000 गुना अच्छा था। और उस वक्त वो व्यक्ति एक निर्णय लेता है कि मैं उठूंगा यहाँ से और मैं रिटर्न आऊंगा, मैं एक टर्न ले लूंगा
अपने पिता परमेश्वर के तरफ, और मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा अपने पिता के पास, और मैं जाकर मैं मेरे पिता के घर में रहूंगा। अगर मुझे उस घर में एक नौकर के जैसा ही क्यों ना रखा जाए, पर उस घर में एक नौकर का जीवन भी इस जीवन से बहुत बहुत अच्छे तरीके का जीवन होगा। तो उसे उस वक्त उन्होंने वो एक निर्णय लिया कि मैं अपने पिता की तरफ मुड़ूंगा, और ये ही बहुत इम्पोर्टेंट निर्णय है जो हम सबको लेना है। और हमें पहले पूछना है कि मैं किस तरीके का जीवन जी रहा हूँ, और अगर मैंने आज तक मैंने सिर्फ अपने लिए मैंने जीवन जिया है, मैंने जो भी फैसले लिए हैं, मैंने ये सोच के फैसले लिए कि मेरी खुशी कहाँ पे है, और मैंने कभी ये नहीं सोचा कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, परमेश्वर क्या कह रहे हैं, परमेश्वर मुझे क्या कहना चाहते हैं, उनकी इच्छा क्या है, वो क्या चाहता है कि मैं मेरा जीवन किस तरीके से जीऊं। अगर मैंने ये सवाल कभी पूछा नहीं है, तो आज वो समय आ गया है कि मैं ये सवाल पूछूं। और भले ही मुझे ये सवाल का जवाब जो है मुझे तुरंत ना मिले, मुझे समय लगेगा, पर इम्पोर्टेंट जो विषय यहाँ पे है कि मेरे दिल के अंदर वो जो टर्निंग है, वो एक दिशा बदलना चाहिए। मेरा दिल जो हमेशा कहता था कि नहीं मुझे इस तरीके से जीवन जीना है, मेरे दिल को अब एक नया दिशा देना बहुत जरूरी है। अब हमें ये हमारे दिल we should ask ourselves this question: what does my God want me to do? How does he want me to live my life? पिता परमेश्वर क्या चाहते हैं, मैं किस तरीके से मुझे किस तरीके का जीवन जीना है, पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मुझे ये सवाल पूछना है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट चॉइस दैट वी नीड टू मेक। द सेकंड चॉइस दैट वी नीड टू मेक is we need to receive Jesus. हमें यीशु को ग्रहण करना है, यीशु को ग्रहण करना है। John chapter 3 verse 36 very clearly says, whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life, for God's wrath remains on them. तो ये एकदम साफ तरीके से लिखा गया है, whoever believes in the Son has eternal life. अब ये जो believe है, ये इस शब्द को हमें समझना है। तो ये शब्द का ये मतलब नहीं हाँ मैं यीशु में विश्वास करता हूँ। यीशु में विश्वास तो हर कोई व्यक्ति को पता है कि यीशु है, और यीशु में विश्वास करना इसका अर्थ क्या है। So what does it mean to believe in Jesus? Okay? तो मैं आपको एक छोटे सा उदाहरण देना चाहता हूँ। तो जब मैं निर्णय लेता हूँ कि मैं परमेश्वर के पास आऊँगा, उस निर्णय के बाद जब मैं परमेश्वर के पास आता हूँ, वहाँ पे एक प्रॉब्लम समस्या खड़ा हो जाता है कि मैंने जो जीवन जिया है, अपने लिए जीवन जिया है, वो एक सिन का जीवन है। जब कोई भी व्यक्ति अपने लिए जीवन जीता है, इट्स अ सिनफुल लाइफ, और मुझे उस पापों के लिए मुझे पश्चाताप करना है। पर पाप जब हम कोई भी पाप करते हैं, तो उस पाप का एक परिणाम भी होता है, और छोटा पाप क्यों ना हो, और उस पाप का एक परिणाम होता है। और हमें बाइबल ऐसा कहता है रोमन 6:23 में कि हर पाप का परिणाम है मृत्यु, हर पाप का परिणाम है मृत्यु। ओके, तो क्यों हमें लगता रहेगा कि क्यों हर पाप का परिणाम मृत्यु क्यों होना चाहिए? वो हमें इसलिए ऐसा लगता है ना, क्योंकि हम पाप के साथ है ना एकदम कंफर्टेबल हो गए हैं। पर हमें और हमारा दिल जो है ना पाप के साथ एकदम कंफर्टेबल हो गए। हमें ठीक लगता है, अगर हम झूठ बोलते हैं ना तो भी हमें चुभता नहीं, हमें दिल में महसूस नहीं होता है, क्योंकि हम एकदम कंफर्टेबल हो गए। पर अगर हम परमेश्वर की नजर से देखेंगे ना, पाप सीरियस है, हर पाप सीरियस है। एंड दैट इज व्हाई रोमन 6:23 सेज कि हर पाप का जो वेजस है, या पाप के लिए जो फल मिलना चाहिए, वो है मृत्यु। तो हमने जो जीवन जिया है, पाप का जो जीवन जिया है, उसके लिए हमें जो दंड मिलना चाहिए वो मृत्यु है। तो
तो हमने पिता परमेश्वर के पास आने के लिए निर्णय तो लिया, पर ये जो पाप हमारे जीवन में है उसका क्या होगा। तो उसी के लिए परमेश्वर आए और हमारे पापों जो दंड हमें मिलना चाहिए था, परमेश्वर यीशु ने ये पापों का दंड उन पे लिया। ये बहुत बार हमें ये जो है बात समझने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पर मेरे जीवन में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से मुझे ये समझ में आया कि ये कैसे होता है। मैंने एक व्यक्ति को, मेरे रिलेटिव को मैंने लोन दिया था, लोन दिया नहीं था, मेरे रिलेटिव ने लोन लिया था और उसके लिए मैं गारंटर खड़ा हुआ। और वो जो रिलेटिव था, क्योंकि उनको बहुत पैसे के प्रॉब्लम्स में थे, उनका बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ, तो वो लोन चुका नहीं पाए। तो क्या किया, बैंक ने मुझे नोटिस दिया, क्योंकि मैं गारंटर था। बैंक ने कहा कि तुमने गारंटी दिया है तो तुम पैसा चुकाओ। तो उस वक्त मुझे पहला बात तो मुझे बहुत गुस्सा आया नोटिस देखा तो, पर जब मैंने मेरे रिलेटिव से बात की तो मुझे पता चला कि वो बहुत बहुत बुरी तरह, बहुत मुश्किल में था। और उस वक्त मेरा गुस्सा भी चला गया और मुझे उस पर तरस आया। और उस वक्त मेरे पास पैसे भी थे, तो मैंने ये निर्णय लिया कि मेरे पास पैसे है और ये मेरा रिलेटिव है और जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो मैं इसका लोन पे कर दूंगा। तो मैंने मेरे पैसे लिया और मैंने बैंक में जाके सेटलमेंट किया उसका लोन का, और लोन के पूरे पैसे मैंने बैंक को दे दिया। और बैंक ने मुझे लेटर दे दिया कि ये लोन से मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। तो मैं भी छूट गया और मेरा जो रिलेटिव था वो भी छूट गया। तो ये परमेश्वर ने हमारे साथ ऐसा ही किया है, पिता परमेश्वर ने। अब ये जानना बहुत जरूरी है, मैंने उस बैंक लोन में क्यों दे सका, उस पैसों को मैं क्यों दे सका, क्योंकि मेरे पास पैसे थे और मैं मेरे रिलेटिव से मैं प्यार करता था। ये दो कारण थे जिसके वजह से मैंने वो लोन चुका पाया। पर हमारे पाप का जो हिसाब है ना, वो कैसे चुकता कर पाएगा। हर कोई इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरे पापों का चुकता कर सकते, क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति ने पाप किया है। तो इसलिए ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो खड़ा हो सकता है परमेश्वर के सामने और कह सकता है कि मैं अगस्टिन का पाप का कर्ज मैं चुकाऊंगा, क्योंकि हर व्यक्ति ने पाप किया है। सिर्फ यीशु एकमेव इंसान, वह इंसान भी थे पूरी तरीके से और पूरी तरीके से परमेश्वर भी थे। एकमेव व्यक्ति था इस दुनिया में जिन्होंने एक ऐसा जीवन जिया जो निष्पाप थे। और क्योंकि यीशु ही एक व्यक्ति है जिनमें कोई पाप नहीं है, जब यीशु ने कहा परमेश्वर को कि अगस्टिन का और मेरे जो भाई बहन जो मुझ पे विश्वास करेंगे उन सब का पापों के लिए मैं वो दंड लेना चाहता हूं, तो परमेश्वर ने वो दंड जो हमें मिलना चाहे तो प्रभु यीशु को दिया, क्योंकि पिता परमेश्वर भी हमसे प्यार करते हैं और यीशु भी हमसे प्यार करते हैं। इस तरीके से प्रभु यीशु ने हमारे पापों का कर्ज चुका है। तो हमें इसमें विश्वास करना है, इसको हम गॉस्पल कहते हैं, और इस गॉस्पल में हमें विश्वास करना है। और सिर्फ प्रभु यीशु में ही विश्वास नहीं करना है, इसके आगे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चॉइस है जो हमें करना पड़ेगा। तो पहला चॉइस था कि हमें पिता परमेश्वर के तरफ हमें चलना पड़ेगा, हमें हमारे जीवन का दिशा को बदलना पड़ेगा। दूसरा चॉइस था कि हमें प्रभु यीशु को स्वीकार करना पड़ेगा। और तीसरा चॉइस, यह बहुत इंपॉर्टेंट चॉइस है, सिर्फ प्रभु यीशु को स्वीकार करने से सब कुछ नहीं ठीक होगा। हमें एक तीसरा भी चॉइस है, बहुत इंपॉर्टेंट चॉइस है। हमें इस जीवन में दुख दर्द को भी हमें अपनाना पड़ेगा। वी विल हैव टू बी रेडी टू सफर। द थर्ड चॉइस इज वी विल हैव टू बी रेडी टू सफर। मैं इस बात का मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करता हूँ। अब ये रोमन्स 8:16-17 में लिखा है, The Spirit Himself testifies with our spirit that we are children of God, and if children, heirs also, heirs of God and fellow heirs with Christ, if indeed we suffer with Him, so that we may also be glorified with Him. इसमें साफ लिखा गया है कि अगर मैं परमेश्वर का बेटा हूँ और मुझे अनंत काल का जीवन मुझे मिलना है प्रभु यीशु के साथ, तो जिस तरीके से प्रभु यीशु ने दुख दर्द को अपनाया, सफरिंग को अपनाया,
उसी तरीके से मुझे भी सफरिंग को अपनाना है। तो ये जो बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए, मैंने परमेश्वर की तरफ मैंने अपने जीवन को मोड़ा, मैंने प्रभु यीशु को स्वीकार किया, फिर भी मैं यहाँ पे हूँ पृथ्वी में। क्यों? ऐसे ऐसे क्यों नहीं हुआ कि परमेश्वर ने मुझे डायरेक्ट हेवन में लिया? कि मुझे यहाँ पे रखा गया है कुछ कारण के लिए, और वो कारण है कि मैं यीशु जैसा प्यार करना सीखूं। There is only one point, brothers and sisters. इस full teaching में मैं चाहता हूं कि आप इस पॉइंट को याद रखें। God has kept us here so that we will learn to love like Jesus. ये हम सीखेंगे, हमें टाइम दिया गया है, हमें वक्त दिया गया है इस संसार में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन को सीखने, टू लव लाइक जीसस। अब जो प्यार जो है, ये अच्छे समय में नहीं प्यार बाहर आता है, ये बुरे समय में ही पता चलता है कि हमारा प्यार कितना सच्चा है। ओके, तो दैट इज व्हाई ओनली सफरिंग विल टेल अस वेदर वी लव गॉड, ओनली सफरिंग विल टेल अस वेदर वी लव वन अनदर, वेदर वी लव आवर फैमिलीज एंड वेदर वी लव आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जब हम परमेश्वर के लिए दुख तकलीफ उठाएंगे, उसी वक्त हमारे प्यार का जो है वो एक प्यार जो हम कह सकेंगे कि ये सच में प्यार है। अगर हम सफरिंग लेने के लिए तैयार नहीं है परमेश्वर के लिए, तो हमारे प्यार में खामी है। और अगर हम हमारे फैमिली में, और अगर हम हमारे एक दूसरे के साथ जो हमारा व्यवहार होता है चर्च के अंदर या ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के साथ या नेबर्स के साथ या हमारे कलीग्स के साथ, उस हमारे व्यवहार में अगर प्यार नहीं है, स्पेशली जब बुरा वक्त, तो उस प्यार में खामी है। So only suffering purifies love. Okay, so this is one important thing that we should be ready to suffer. क्यों? क्योंकि इटर्नल लाइफ जो है, हेवन जो है, और हमें हेवनली फैमिली में रहना है, तो वहां पे लव का बहुत जरूरत है। वहां पे जाके हम एक दूसरे का बुराई नहीं कर पाएंगे। सेंट पीटर ने मुझे ये कहा, मुझे बहुत बुरा लगा, वो उसका बात करने का तरीका ठीक नहीं था। उन्होंने मुझे कहा कि जाओ ये काम करो, तुम्हें आज ये काम करना। उन्होंने मुझे बॉसिंग किया। लव रहेगा तो ओबीडियंस भी आएगा, लव रहेगा तो हम लव में हम सबमिशन भी करेंगे। तो वहां पे हेवन में गॉसिप नहीं चलेगा। तो हमें लव सीखना होगा, क्योंकि इसलिए परमेश्वर ने हमें वक्त दिया है कि हम लव को यहाँ पे पृथ्वी में सीखे। जो सेंट्स है, जो परफेक्शन पाते हैं यहाँ पे, उन्हें डायरेक्ट हेवन में जगह मिल जाता है। पर हम अगर खामियां के साथ बढ़ेंगे और हमारे लव में बहुत सारे खामियां होगी, तो हमें परगेटरी में जाना पड़ेगा, वहां पे जहाँ पे हमें प्यूरिफिकेशन के थ्रू प्यूरिफाई होना पड़ेगा, और फिर हमें इटर्नल लाइफ में हमें एंट्री मिलेगी। ये सब हमारे कैथलिक कैटेकिज्म में लिखा गया है। ओके, सो बेटर इफ यू वांट टू स्पेंड लेस टाइम इन परगेटरी, हमें यहाँ पे सीखना पड़ेगा कि प्यार किस तरीके से करना चाहिए। देखिए, छोटा छोटा चीज है, हमारे फैमिली में ही बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेगी हमें सफर करने के लिए। बहुत बार हमें कंप्लेंट सुनना पड़ता है कि मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, मेरा वाइफ ऐसा है, मेरा चिल्ड्रन ऐसा है। बट थिंक ऑफ इट, ये एक अपॉर्चुनिटी है सफरिंग के लिए, ताकि हमें उससे हम उन्हें और भी ज्यादा प्यार कर सकेंगे, ताकि हमारा प्यार जो है वो प्यूरिफाई हो जाएगा, ताकि हमें God is getting us ready for eternal life. Okay, so there are three choices that we need to make. We need to return to the Father, we need to receive Jesus, and we need to be ready to suffer. मैं चाहता हूँ कि इस टीचिंग के द्वारा मैं चाहता हूँ कि आप दो डिसीजन ले। दो डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, ठीक है। अब अगर हम पढ़ेंगे कैटेकिज्म 1021 से 1022, उसमें क्या लिखा गया है कि हमें वक्त दिया गया है ये चॉइसेस करने के लिए, कि हम यीशु को स्वीकारते हैं या नहीं, कि हम गॉस्पेल को स्वीकारते हैं या नहीं, क्या हमें निर्णय लेते हैं कि हम परमेश्वर के लिए जिएंगे या नहीं। तो इस निर्णय को हमें लेना है, क्योंकि अगर हमारा मृत्यु हो जाता है सडनली, अकस्मातिक, एक सडन वे में, हमें शायद वो मौका नहीं मिलेगा। और कैटेकिज्म कहता है कि अगर हम वो निर्णय नहीं लेते हैं मरने से पहले, तो शायद ऐसा हो सकता है कि दरवाजा बंद हो जाएगा। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेट्स टेक अ डिसीजन नाउ। इसमें लेट्स नॉट, अगर मृत्यु आएगा, अकस्मात मृत्यु हो जाता है,
तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए. So let's take a decision now to turn our life. आज तक हमने हमारे लिए जिया होगा जीवन, पर आज से हम जीवन परमेश्वर के लिए जिएंगे. आज से हम यीशु को अपनाएंगे. सिर्फ यीशु ने हमारे पापों का दंड लिया है, यीशु ने हमारे पापों का कर्ज उतारा है, सिर्फ इस बात में विश्वास ही नहीं करेंगे, पर हम इस बात में भी विश्वास करेंगे कि यीशु में ही जीवन है और यीशु के संग चलने में ही जीवन है. That I will follow Jesus, that I will be a disciple. मैं ये निर्णय लूंगा कि मैं मेरा जीवन परमेश्वर के बताए गए, यीशु के बताए गए शब्दों के ऊपर मैं अपना जीवन को बनाऊंगा. That I will build my life upon the word of God. और दूसरा चीज जो हमें करना है, ओके, ये सब जो हमने सीखा है ना आज, ये सब करने के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट. टू सफर इज वेरी डिफिकल्ट और बहुत बार हम जीवन में फेल हो जाएंगे. इसलिए द सेकेंड थिंग दैट वी नीड टू डू इज, हमें कहना है कि परमेश्वर मैं ये सब करना चाहता हूँ, पर मेरे में वो ताकत नहीं है, मुझे आज आप मदद करो. आई डू दिस एवरी डे I make this small prayer. I say, God, I want to live for you. I want to love. I'm willing to suffer. But God, I cannot do this on my own. On my own, I will fail. So God, help me. Every day, I say this prayer. Every day. Sometimes I say it 3 or 4 times a day. मैं कभी-कभी 3 या 4 बार ये प्रार्थना करता हूँ. मैं हमेशा, तो मुझे ये प्रार्थना करने से एक तो मुझे याद भी रहता है कि मुझे ये सब चीज करना है, और दूसरा परमेश्वर मुझे अनुग्रह देता है कि मैं उसके बताए मार्ग पे चलूं. तो ये 2 चीज हमें करना है. कैन वी जस्ट क्लोज आवर आईज एंड can we close our eyes and can we spend us time in prayer? Heavenly Father, पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे लिए एक ऐसा जीवन रखा है जो अनंत काल है, जहाँ पे मैं खुश रहूँगा, जहाँ पे मृत्यु नहीं होगी, जहाँ पे आंसू नहीं होंगे, जहाँ पे कोई दुख या दर्द नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगा. पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ अनंत काल जीवन के लिए, और मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस जीवन के लिए मार्ग खोला है प्रभु यीशु के द्वारा, आपके पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा. हे पिता, आज इस समय मैं निर्णय लेता हूँ पिता कि मैं मेरा जीवन आपके लिए जीऊंगा, आपके इच्छाओं के लिए जीऊंगा. आज तक मैंने इस जीवन को मैंने खुद के लिए जिया है, पर आज से मैं आपके लिए इस जीवन को जीना चाहता हूँ. पिता परमेश्वर, मैं यीशु को स्वीकारता हूँ. आई रिसीव जीसस एज माई लॉर्ड, एज माई सेवियर. लॉर्ड जीसस, come into my life. और पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अनुग्रह दो इस जीवन को जीने के लिए. मैं आपके अनुग्रह के बिना इस जीवन को जी नहीं पाऊंगा. मुझे जरूरत है आपके पवित्र आत्मा की, आपके अनुग्रह के. Father, fill me with your grace that I may live the life that you have called me to do. Heavenly Father, I pray this prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Let us give glory and honor to our Lord for blessing us with Brother Augustine for this wonderful talk, especially the 3 choices that we need to make to have eternal life, like returning to the Father, receiving Jesus, and ready to suffer by loving one another. We would like to thank you on behalf of our prayer group for giving us your precious time for preaching and ministering to us. Brother, may God bless you and your ministry.